Afternoon, friends. In this segment of lecture, we will study and understand the concept of consent and free consent. We have seen in section 10 of the Indian Contract Act that one of the essentials for a valid contract is free consent. Now, what does consent mean? As per section 13 of the Indian Contract Act, consent is defined as when two people agree on a particular thing in the same sense. That is, two people agreeing on the same thing in the same sense. Now, what does this mean? This means that both the people should agree for something, and this agreement should be in consensus of each other. That is, their minds should meet. Their minds should meet. For example, that I go to a carpenter and I tell him that I'll pay you 100 rupees and you make a chair for me, and I point him out to a particular design of the chair. Now, consent would happen when that carpenter knows that he has to make that chair for me and I'll give him rupees 100. In the same way, from my side it would be, I will pay him rupees 100 and that carpenter would be making the same chair for me. So our minds meet, my mind and carpenter's mind meet, so we can say that there is a consent between us. Generally, what happens in college life, just on a lighter note, that we fail to understand same thing in the same sense. How? हम कॉलेज में देखते हैं या अक्सर किसी ने हमसे नोट्स मांगे, कोई हमसे नोट्स मांगती है, फिर बाद में आके मुस्कुरा के थैंक यू बोलती है. तो अब मुस्कुराना सेम थिंग हो गया, एक चीज हो गई. अगर उससे पूछेंगे तो बोली मैं मुस्कुराई, हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे हाँ वो मुझे देख के मुस्कुराई. मगर उसका मुस्कुराना किस सेंस में था? थैंक यू के सेंस में था, एक गुडविल जेस्चर था, एक अच्छा जेस्चर था कि भाई थैंक यू, आपने मुझे नोट्स दिए. अब मैं उस मुस्कुराहट को कुछ और समझ रहा हूं. अंडरस्टैंडिंग वो पॉइंट. देखिए, ये सिंपल रियल लाइफ के एग्जांपल से अगर बात समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. इट्स एन इजी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड. सेम थिंग, उसका मुस्कुराना. शी विल से मैं मुस्कुराई, मैंने कहा आप मुस्कुराए. मगर उसका मुस्कुराना जस्ट थैंक यू के बाद एक जो सोशल जेस्चर होता है कि भाई हाँ ओके थैंक यू. अब मैं उसको मुस्कुराऊंगा, हाँ ये मेरी तरफ देख के मुस्कुराई. तो यहाँ क्या हुआ? एक चीज है मुस्कुराहट, बट हम दोनों के माइंड्स आर नॉट मीटिंग, सो दिस कैन नॉट बी सेड टू बी अ कंसेंट. ओके, सो कंसेंट एज पर सेक्शन 13 मीन्स when two people agree to the same thing in the same sense. Okay, now moving ahead. Merely consent is not enough. As per section 10, it should be a free consent. Free consent. Here free does not mean monetary terms में free या पैसे के लेन देन से free. इसको free consent नहीं कहेंगे. यहाँ कहते हैं free को मतलब freedom of thought, free will, आजाद ख्याल, आजादी से अपना जो विचार कर रहा है, वो अपने स्वतंत्र विचार जो कर रहा है उसे कहेंगे फ्री विल. तो फ्री कंसेंट में ये जो फ्री वर्ड है, इट डिनोट्स फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ विल. ओके, सो व्हाट इज फ्री कंसेंट नाउ? सो सेक्शन 14 says free consent means a consent, free consent means a consent which is not affected by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Again, free consent is a consent that is not influenced by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. इसका मतलब कि इन पांचों में से अगर कोई भी एक चीज कंसेंट के अंदर, कंसेंट के साथ मिल जाए तो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं रहेगा. फ्री कंसेंट होने के लिए उसे इन पांचों चीजों से मुक्त रहना पड़ेगा, अलूफ रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा. अब ये पांचों चीजें जो है subsequent sections में, all these 5 things are explained in the subsequent sections. Now let's see what is coercion.
Section 15 of the Act explains coercion. Coercion means committing or threatening to commit any act that is forbidden by Indian Penal Code 1860 or detaining or threatening to detain property of a person with the motive or with the view to force that person to enter into the contract. बात समझ में? सिंपल. कोर्शन का मतलब है ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना. हमारे लिए आईपीसी 1860 यानी क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है. क्रिमिनल एक्टिविटी करना या करने की धमकी देना या किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती हथियाना या हथियाने की धमकी देना, इस मकसद के तहत, इस मंशा के तहत कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला इंसान कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए मजबूर हो जाए, विवश हो जाए, विद द व्यू टू मेक द पर्सन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि उसकी मंशा ये होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए. अब ये कैसे समझेंगे? कोर्शन समझना बहुत आसान है. जैसे हिंदी पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि विलन जनरली हीरो की माँ को, बहन को, गर्लफ्रेंड को, बीवी को किडनैप करता है कि अगर तुमने ये जायदाद मेरे नाम नहीं की, या तुमने ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए, या तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दिया, तो हम तुम्हारी बीवी बच्चे की जान ले लेंगे. दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ कोर्शन. किडनैपिंग, committing murder or threatening to commit murder are all crimes under IPC. IPC की धाराएं हम न्यूज में सुनते रहते हैं. IPC की धारा 302. 302 is for murder. Okay. So kidnapping, threatening to kidnap, murder, threatening to murder, abetment to murder, ये सब चीजें जो है, ये सब IPC के अंदर क्राइम है. तो ये सब चीजें करने की धमकी देना इस मंशा के साथ कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, ये कोर्शन है. ठीक है. अब there is one more point that has to be understood, that it is not necessary that the party to the contract is committing coercion. दो व्यक्ति है, एक कोर्शन कर रहा है, दूसरे पे कोर्शन हो रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि कोर्शन करने वाला अपने हाथों से कोर्शन करे या खुद कोर्शन करे. यह भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोर्शन करवाए किसी पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. वेरी सिंपल एग्जांपल अगेन वी सी इन फिल्म्स. मेरे आदमी, आपके घर वाले मेरे आदमियों के कब्जे में, विलन सेज. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट विलन हिमसेल्फ हैज नॉट कमिटेड द एक्ट ऑफ किडनैपिंग और ही विल नॉट कमिट द मर्डर. हिज पीपल विल डू. जस्ट अभी संजय दत्त के टॉपिक पे से कुछ याद आया. संजय दत्त का टॉपिक क्योंकि अभी न्यूज में बार बार आ रहा है, तो उनकी एक मूवी है वास्तव. उसमें एक सीन है कि एक बिल्डर के लिए संजय दत्त एक पारसी लैंड ओनर से जगह खाली कराते हैं, और वो जगह खाली कराने के लिए वो धमकी देते हैं संजय दत्त कि मैं आपके बेटे को मार दूंगा, उनके सर पे गन पॉइंट पे सिग्नेचर कराते हैं. समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है. यहां क्या हुआ? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन है? लैंडलॉर्ड, पारसी लैंडलॉर्ड और द बिल्डर. मगर कोर्शन किसके थ्रू हो रहा है? संजय दत्त कर रहे हैं कोर्शन. मूवी के सीन में संजय दत्त कोर्शन कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोर्शन किस कर तो संजय दत्त रहे हैं, मगर करवा कौन रहा है? बिल्डर. ठीक है. तो ये सिंपल एग्जांपल है कि गुंडों को भेज के लैंड खाली करवाई, या कम दामों पे लैंड जबरदस्ती, फिल्म में जो सीन है उसमें जबरदस्ती बिकवा दे, फ्री में लैंड नहीं लेते, बोले ये पैसे लो और जगह हमारे नाम कर दो. ये कोर्शन हुआ. ओके. I think quotient is now understood. Okay. Now moving on to the next section. Section 16, that is undue influence. Moving on to the next section, that is section 16. It talks about undue influence. What is undue influence? Undue influence means or undue influence means that where relationship between the two parties or the parties to the contract are such that one party is able to have an influence over the other party
and such influential party uses its position to get an unfair advantage in the contract. That is, there should be two parties. One party should be able to influence the other party or should have an influence over the other party due to the relationships or the relationship subsisting between them or existing between them, and that influential party should use its position to gain an unfair advantage over the other party in the contract. क्या समझ में आया? इसका मतलब दो लोग हैं, उनमें एक ऐसा रिश्ता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे हावी हो सकता है या हावी है, और वह व्यक्ति जो निचले स्तर का व्यक्ति है उस पर अपना प्रभाव डालता है कॉन्ट्रैक्ट में एक अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगेन जस्ट टू कोट अ स्मॉल एग्जाम्पल, इट्स अ सैड एग्जाम्पल एक्चुअली बट इट्स ट्रू. एक दामाद है और एक ससुर है. क्योंकि ससुर ने अपनी बेटी दामाद के साथ ब्याही है, वी सी इट in our society. It's sad but true. I have also seen it happen कि क्योंकि ससुर ने अपनी बेटी दामाद के साथ ब्याही है, तो दामाद क्या करता है, अपनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है. आपने कुछ भी किया तो मैं आपकी बेटी को तकलीफ दूंगा. तो ससुर बेचारा कि अरे मेरी बेटी को तकलीफ ना हो जाए. तो क्या हुआ यहाँ पे, दामाद प्रभावी व्यक्ति है और ससुर वो है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है या जिसके ऊपर दामाद हावी हो रहा है. बात समझ में आ गई? Here the son-in-law is the influential person and father-in-law or ससुर जी is the person who is getting influenced. Understanding my point? तो यहां पे दो उनमें रिश्ता है, they both share a relationship of son-in-law and father-in-law. Here son-in-law is not a good son-in-law, otherwise he would not do this, but a bad son-in-law. He is using his influential position against his father-in-law. When they enter into a contract, son-in-law ऐसे टर्म्स रखता है कॉन्ट्रैक्ट में जो उसके एडवांटेज के लिए है, अनफेयर एडवांटेज के लिए, और ससुर उसमें अनफेयर लॉस में है और डिसएडवांटेज में. बात समझ में आ गई? वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ससुर दामाद का एग्जाम्पल याद रखिए कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से नहीं किया तो मैं आपकी बेटी को सताऊंगा. ये बोलने की भी जरूरत नहीं है. दामाद है, ये हमारी सोसाइटी में हम देखते ही हैं, बस दामाद जी ने कुछ बोल दिया, दामाद के आगे कौन सा ससुर जाता है. गेट मी पॉइंट? रिसेंटली आई हैड द मिसफॉर्चून, ये मेरे साथ एक बहुत दुखद घटना हुई. क्या मैंने अजय देवगन साहब की हिम्मत वाला देखी, बहुत दुखद घटना थी मेरी जिंदगी की. तो उसमें एक सीन है जिसमें अजय देवगन की बहन के साथ विलन शादी करता है और बाद में उसकी बहन पे जुल्म करता है ताकि अजय देवगन को कंट्रोल करे. यहाँ क्या हुआ, अजय देवगन का ब्रदर इन लॉ अध्ययन सुमन, शेखर सुमन साहब के लड़के, वो अजय देवगन की बहन पे प्रेशर डालते हैं. क्यों? क्योंकि वो पति है, जालिम पति है, नॉट अ गुड हस्बैंड. ही इज प्रेशराइजिंग हिज वाइफ in order to take revenge from her brother. समझ में आया? ये हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वी सी इज फ्रॉड. सेक्शन 17. What is fraud? Fraud means doing any act or making any claim or assertion with the view to induce the other party to enter into the contract, and the party making such assertion or claim knows that such assertion or claim is false. It means making a false assertion or doing an act
knowing it to be false with the view to make the opposite party enter into the contract. बात समझ में आ गई? यानी फ्रॉड करने वाला खुद जानता है कि वो झूठ बोल रहा है. The person making the claim knows that he is lying. He does it purposely. Okay? Now again, going back to IPC, a very famous section which we all know, section 420, right? Section 420 of IPC, वो फ्रॉड और डिसीट के लिए ही है. बात समझ में आ गई? फ्रॉड का मतलब क्या कि जानबूझ के झूठ बोलना किसी को फंसाने की नीयत से ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए. इसका मतलब कि भाई ये अगर कोई पूछ रहा है कि ये गाड़ी कितना एवरेज देती है, गाड़ी दे रही 30 का एवरेज सिटी ट्रैफिक में, टू व्हीलर 30-35 का एवरेज दे रही है, मैं कहूंगा 70 का एवरेज दे रही है बॉस, नॉन मेंटेनेंस, और मेरी बैटरी तो हर 2 दिन में उतर जाती है. सामने वाले को बोलूंगा नो मेंटेनेंस, साल भर गैरेज में ले जाने की जरूरत ही नहीं है. व्हाट एम आई डूइंग? मुझे पता है मेरी गाड़ी हर 2 दिन में गैरेज जाती है, एवरेज 30 का देती है, और मैं सामने वाले को बेचते वक्त क्या कह रहा हूं, एवरेज 70 का है, और ये गैरेज में साल भर इसको गैरेज ले जाने की जरूरत नहीं है, आप ले लो. वो तो मैं मुश्किल में हूं, मुसीबत में हूं, इसके लिए गाड़ी बेच रहा हूं, वरना इतनी अच्छी गाड़ी कौन बेचेगा. आई नो दैट ऑल द स्टेटमेंट्स आई एम मेकिंग आर फ्रॉड. मुझे खुद गाड़ी से जान छुड़ानी है, मैं कब तक वो गाड़ी को ही संभालूं. तो ये हुआ फ्रॉड. समझ में आया? अच्छा, कभी कभी साइलेंस, खामोशी भी फ्रॉड होती है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सेक्शन ऑफ फ्रॉड दैट समटाइम्स साइलेंस tantamounts टू फ्रॉड. एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि when does silence tantamount to fraud, or when is silence construed to be fraud? It happens in situation where one person says that if you are silent, I will assume what I am saying is true. If you are silent, I am assume what I am saying is true. इसका मतलब कि अगर आपने मेरी बात को गलत नहीं कहा तो मैं समझूंगा कि मेरी बात सही है. जैसे कि एक आदमी घोड़ा खरीदने गया, घोड़ा पागल है. अच्छा, मैंने सामने वाले से पूछा, मैं जब घोड़ा खरीदने सामने वाला आदमी के पास गया तो सामने वाले से पूछा उस आदमी ने कि क्या ये घोड़ा पागल है. हॉर्स ओनर केप्ट क्वाइट. हॉर्स ओनर शांत रहा, खामोश रहा. ही डिड नॉट रिप्लाई. खामोश, कोई जवाब नहीं दिया उसने. क्या ये घोड़ा पागल है? इज दिस हॉर्स नॉट ऑफ स्टेबल मेंटल कंडीशन? आई आस्क्ड क्लियरली. द पर्सन आस्क्ड क्लियरली. ओके, व्हाट हैपेंड? द सेलर केप्ट क्वाइट. बेचने वाला खामोश रहा. फिर अगला सवाल खरीदने वाले जो खरीदने गया था उसने कहा कि अगर तुम खामोश रहे तो मैं समझूंगा कि घोड़ा की मानसिक स्थिति अच्छी है. द हॉर्स इज नॉट अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल. इफ यू कीप साइलेंट आई विल अज्यूम दैट द हॉर्स इज नॉट मेंटली अनस्टेबल. अगर आप खामोश रहे तो मैं ये समझूंगा कि ये घोड़ा पागल नहीं है. ठीक है. अब ऐसी परिस्थिति में यदि घोड़ा सच में पागल है और बेचने वाला खामोश रहता है और ही मेंटेन साइलेंट, दिस साइलेंस tantamounts टू फ्रॉड. बात समझ में आ गई? अगर ऐसी परिस्थिति में भी वो बेचने वाला खामोश रहता है और कुछ कहता नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फ्रॉड हुआ. क्योंकि जब सामने वाला खरीदार खुद कह रहा है कि अगर तुम खामोश रहे तो मैं समझूंगा घोड़ा अच्छा है. अब घोड़ा है तो पागल, मगर मैं खामोश रह के ये जता रहा है, बेचने वाला ये जता रहा है कि घोड़ा पागल नहीं है. उसके खामोशी पे इसने एक अजम्पशन कर लिया कि घोड़ा पागल नहीं. अब हियर साइलेंट अमाउंट्स टू फ्रॉड. ओके, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज मिसरिप्रेजेंटेशन. Moving on to the next section, section 18. Section 18 deals with misrepresentation. Misrepresentation means making a false statement or an assertion without the intent to deceive another party, and the person making such statement believes it to be true.
यानी कि जो बोल रहा है वो बोल रहा है, गलत बात कह रहा है, बट ही इज डूइंग दैट एक्शन और ही इज मेकिंग दैट स्टेटमेंट इन गुड फेथ, बिलीविंग इट टू बी ट्रू। अगेन घोड़े वाला एग्जांपल कि इसको पता ही नहीं है कि घोड़ा पागल है या नहीं, इसको लगता है घोड़ा पागल नहीं है, हालांकि घोड़ा पागल है, इसको लगता है घोड़ा पागल नहीं है और ये कहता है कि घोड़ा पागल नहीं है, ले जाओ। तो यहां इसकी मंशा जो है ये डिसीव करने की नहीं है, या ये जानबूझ के झूठे बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है गलत है। ही इज मेकिंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिलीविंग इट टू बी ट्रू इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज मिस रिप्रेजेंटेशन में ही कि यहां पे सबसे बड़ा फर्क फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में है द प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। इन लॉ आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, एक टर्म याद रखना चाहिए, दैट इज मेंस रिया, लैटिन फ्रेज मेंस रिया। मेंस रिया लॉ में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर जब आप आगे ट्राइब्यूनल में केसेस लड़ेंगे या अपैरेट अथॉरिटी के सामने जाएंगे या कभी कोर्ट में कोई प्रैक्टिस करने वाला हो, एनीबडी हु इज टेकिंग अप लॉ, दिस कॉन्सेप्ट, दिस वर्ड अज्यूम्स प्राइम इंपॉर्टेंस, स्पेशली जब कोई जज पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता हो। तो जब कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करती हो तो ये मेंस रिया जो टर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड इज मेंस रिया। फ्रॉड में क्या था, जानबूझ के वो झूठ बोलता है, जानबूझ के वो झूठ बोलता है या कोई ऐसा काम करता है, जानबूझ के कोई गलत काम करता है, जानबूझ के झूठ बोलता है या ऐसा गलत काम करता है ताकि सामने वाला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। मिस रिप्रेजेंटेशन में वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन में उसके दिल में उसको लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है, यानी घोड़ा पागल नहीं है, उसने समझ लिया। ओके, तो यहां पे मेंस रिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड, हम दोस्तों में जो प्यार मोहब्बत में बोलते हैं ना कभी कभी, तेरा तो मन में चोर है, तो ये वो मन में चोर जो है ये मेंस रिया है। समझ में आई बात? ये मन का चोर ये मेंस रिया है। नहीं तो यार कभी कभी कैसा होता है, हाँ यार गड़बड़ हो गई, अभी कोई दोस्त गाड़ी लेके गया, गलती से एक्सीडेंट हो गया, उसकी गलती नहीं, वो सिग्नल पर रुका हुआ है, पीछे से आगे किसी ने डैश कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, मेरी गलती नहीं थी यार, मेरे क्या, आजा ठीक है चल, तू गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा तू मत दे, तेरी गलती नहीं है, तूने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है। अब ये सामने से अगर अपनी कार ले जाके, आपने कोई दोस्त को कार दी और ये सामने से जाके डैश कर रहा है, तो इसका नेग्लिजेंस है, इसका नेग्लिजेंस है। तो आप क्या कहेंगे, नहीं अब तेरी गलती है, तू केयरलेस, तूने रेकलेस ड्राइविंग की, तू अब मुझे गाड़ी का खर्चा भर के दे। समझ में आया? सिंपल थिंग। अगेन वन मोर सिंपल एग्जांपल से मेंस रिया का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बाद में बहुत काम आने वाला है आगे चल के। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे आप, ट्राइब्यूनल में, कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में या कोई लॉ में इंटरेस्टेड हो, कोर्ट में जाएगा, ये मेंस रिया का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्या है। और ये मेंस रिया का कॉन्सेप्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में मेंस रिया का कॉन्सेप्ट ही एक डिफरेंस है। कैसे? एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आप ध्यान में याद रखिए तो इंशाल्लाह आपको ये हमेशा के लिए फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में आएगा। कैसे? एक व्यक्ति है जो बीमार है, एक व्यक्ति है जो बीमार है, एक आदमी बीमार है, दूसरा आदमी उसको दवाई लाके देता है इस नियत से कि वो अच्छा हो जाए, इस नियत से कि वो अच्छा हो जाए। नियत क्या है कि वो अच्छा हो जाए, मगर गलत दवाई दे देता है या तो एक्सपायर्ड दवाई दे देता है, खुद देखता नहीं है, घर में से निकालते हैं अपने यहाँ, ये अक्सर होता है कि पुरानी कब की वही स्ट्रिप निकाल के दे देते हैं एक्सपायरी डेट के लिए। तो वो शख्स, अरे यार ये बीमार है, इसको मैं दवाई देता हूं। और मैं जब बीमार था मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दी थी आज से 4 साल पहले। आपको हुआ क्या था? उसको हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे पेट दर्द था, वही दवा दे रहा हूं, एक्सपायर्ड दवा। एक्सपायर्ड दवा से और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। नियत क्या थी? जब बीमार अच्छा हो जाए मैं दवा दे रहा हूं। हो क्या गया? एक्सपायर्ड दवा देने से बीमार मर गया।
the medicine, the expired medicine served by person B became the reason for the death of person A. ये एक सिचुएशन. यहीं पे अब दूसरी सिचुएशन समझिए कि A बीमार है, B उसका ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो B क्या करता है, उसको जानबूझ के लाके पॉइजन दे देता है और ये मर जाता है. बोले हमारी जान छूटे, so that we don't have to look after you anymore. बात समझ में आई? पहले इसमें क्या था, दोनों सिचुएशन में ये बीमार है, पर पहले इसमें क्या था, बी की मंशा ये थी, नीयत ये थी, नीयत दिल की कैफियत ये थी कि ए अच्छा हो जाए, और दूसरी सिचुएशन में बी की मंशा क्या थी कि ए को मार दिया जाए. अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि दोनों केस में ए मर गया. अब दोनों इस सिचुएशन में बी को पुलिस के पास लेके गए, जज के सामने खड़ा किए. आप जज है सपोज, तो कॉमन सेंस लगाइए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको कहते हैं, कॉमन आदमी किस तरह से समझेगा. आप बोलिए पनिशमेंट किसकी सीवियर ज्यादा होगी, जिसने गलती से एक्सपायर्ड मेडिसिन दिया, वो तो चाहता था कि बेचारा बीमार अच्छा हो जाए, या जिसने पॉइजन दिया. ऑब्वियसली जिसने पॉइजन दिया उसकी सजा ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी बनिस्बत उसके कि जिसने गलती से गलत दवा या एक्सपायर्ड दवा दिया. बात समझ में आई? क्या हुआ, दोनों की सजाओं में फर्क क्यों? मेंस रिया, मेंस रिया, ठीक है, मेंस रिया. तो सेक्शन 17 फ्रॉड और सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन का जो फर्क है वो मेंस रिया है. सेक्शन 17 में झूठ बोलने वाला या धोखा देने वाला जानता है कि वो धोखा दे रहा है, और सेक्शन 18 में धोखा देने वाला ये नहीं जानता कि वो धोखा दे रहा है या उससे जो बोल रहा है वो झूठ है. He does it in good faith, whereas the person committing fraud does it purposely with the intent to deceive the other person. Okay? Now moving on to the last aspect concerning free consent, that is mistake. Section 20. Now what is mistake? Mistake, गलती, गलत फहमी. उसने मुझसे पूछा गलत फहमी पे से, मिस्टेक पे से. उसने दीपक सरोली बोलियो, उसने मुझसे पूछा कि गलत फहमी की इंतहा बताओ. उसने मुझसे पूछा कि गलत फहमी की इंतहा बताओ. मैंने मुस्कुरा के कहा तुझसे वफा की उम्मीद. उसने मुझसे पूछा कि गलत फहमी की इंतहा बताओ. मैंने मुस्कुरा के कहा तुझसे वफा की उम्मीद. मिस्टेक, गलती, गलत फहमी. Mistake generally happens when two parties commit a mistake in understanding facts of the case or facts of the contract or law relating to the contract. Okay? There are two kinds of mistake. Mistake of fact and mistake of law. What is mistake of fact? यानी दो लोग, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कारपेंटर का. मैं गया हूं उसको 100 रुपए देके कुर्सी बनवाने. कारपेंटर समझ रहा है कि भाई 100 रुपए मिलेंगे, मुझे टेबल बनवाना है. अब क्या हुआ? मिस्टेक. कारपेंटर ने क्या किया? कारपेंटर की तरफ से समझने में मिस्टेक हो गई. ये हुई यूनिलैटरल मिस्टेक. बायलैटरल मिस्टेक कि मैंने उसको कहा कि मेरे लिए कुर्सी बनवा दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और कारपेंटर कहता है कि ठीक है मैं बनवा दूंगा, आप मुझे 120 रुपए देना. ये कारपेंटर ने मुझसे 120 रुपए का मुतालबा किया है और मैं समझ रहा हूं मुझे देने 100 ही है. यानी प्राइस के इशू में मेरी मिस्टेक है, और कौन सी चीज बनवानी है, टेबल या कुर्सी, उसकी मिस्टेक है ना. हम दोनों की कहीं ना कहीं मिस्टेक है. ये हुई बायलैटरल मिस्टेक. तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में बायलैटरल मिस्टेक हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड अगर उसमें बायलैटरल मिस्टेक हो तो. ठीक है, ये हुई मिस्टेक ऑफ फैक्ट. यानी फैक्ट क्या है? कुर्सी बनानी है, टेबल बनानी है 100 रुपए में या 120 रुपए में. ये हर चीज में मिस्टेक हो रही है, दोनों तरफ से एक एक बात में मिस्टेक हो रही है. तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है. दूसरी एक चीज होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ.
व्हाट इज मिस्टेक ऑफ लॉ? मिस्टेक ऑफ लॉ ये है कि लॉ समझने में मिस्टेक हुई, यानी मैं इस कानून से आगा नहीं था। तो माय फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा के लिए याद रखिए। ये अभी से लेके तो प्रैक्टिकल लाइफ तक यही काम आने वाला फैक्ट जो है लॉ का ये है कि मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ होमलैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज मिस्टेक। यानी कि नॉट नोइंग द लॉ ऑफ लैंड कैनॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर कमिटिंग अ मिस्टेक। समझ में? यानी मैं इंडियन हूं तो मैं ये नहीं कह सकता, भले मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, कुछ भी हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ा, मुझे अपनी साइन दस्तखत भी करने, मैं स्कूल नहीं गया, फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये नहीं मालूम कि मर्डर करना आईपीसी की धारा 302 के तहत क्राइम है, या फ्रॉड करना आईपीसी की धारा 420 के तहत क्राइम है। ये मैं कह नहीं सकता। क्यों? मैं इंडियन हूं, इंडिया में अगर मैंने क्राइम किया तो मुझे आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी होनी है। मैंने फ्रॉड किया तो दफा 420 के तहत मुझे सजा होनी ही है। तो अपने देश का लॉ मालूम नहीं होना ये कभी भी एक्सक्यूज नहीं होगा। कोई आदमी टैक्स बिना भरे ये नहीं कह सकता, वो मुझे तो पता ही नहीं था यार कि इनकम टैक्स भी भरना होता है। तो यू आर इंडियन, यू डोंट नो अबाउट इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया, नो एक्सक्यूज, भरो टैक्स भरो, पेनल्टी भरो। समझ में आ गया? तो ये है मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ योर लैंड, लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन लैंड, यानी कि बाहर की देश है, उसके लॉ समझने में मिस्टेक हुई तो उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट पकड़ते हैं। ठीक है? मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन लैंड, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन लैंड इज कंसिडर्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यानी अगर मैं इंडियन हूं, मुझे यूएस का लॉ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे लिए वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही रहेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होगा। मुझे वैसे गिल्टी नहीं पकड़ सकते जैसे यहां पे जो क्वांटम ऑफ गिल्ट है कि मुझे अगर इंडिया में, मैं इंडियन होकर इंडिया में क्राइम कर रहा हूं या इंडिया में मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं, लॉ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो जो मेरा गिल्ट है वो ज्यादा है, क्योंकि मुझे एक्सक्यूज ही नहीं है लॉ नहीं समझने का। मगर अगर फॉरेन लॉ है, यूएस का लॉ है, ब्रिटिश लॉ है, जो वो देश का लॉ है, मखसूस उस कंट्री का लॉ है, वो मुझे नहीं मालूम, तो वो मेरे लिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही रहेगी। ओके, सो दिस वॉज इन ब्रीफ अबाउट फ्री कंसेंट. So let's revise once again. Section 10 tells us that free consent is one of the essentials for a valid contract. Section 13 tells us that consent is when two people agree on the same thing, on the same sense. Then section 14 explains us or tells us that free consent is a consent which is not given under the influence of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. फ्री कंसेंट होने के लिए वो कंसेंट को इन पांचों खामियों से मुक्त रहना पड़ेगा, इन पांचों बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा. ठीक है? कोर्शन ऐसी एक्ट है जो इंडियन पीनल कोड ने मना किया है. ऐसी एक्ट करने की धमकी देना या ऐसी एक्ट करना या किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती हथियाना या हथियाने की धमकी देना, इस मंशा के साथ, इस इंटेंट के साथ कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, दिस इज कोर्शन. undue influence, when the relationships between two parties is such that one party can influence the other party and uses its position to gain an unfair advantage. ससुर दामाद का एग्जांपल याद रखिए. पहले वाले कोर्शन में कौन सा एग्जांपल याद रखेंगे आप? संजय दत्त वाला एग्जांपल याद रखिए. अंडू इन्फ्लुएंस में ससुर दामाद वाला. फिर फ्रॉड सेक्शन 420, यानी जानबूझ के किसी को धोखा देना या कोई ऐसी झूठ बात करना ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए. फिर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में फर्क ये है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में भी आदमी झूठ बोलता है मगर उसे खबर नहीं होती कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ. और मिस्टेक, कोई चीज समझने में ही गलतफहमी होगी. ठीक है? So I hope this lecture would be useful to you in understanding the concept of free consent. This is Syed Mudassar signing off. Thank you. Stay well. Bye bye.